السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم پیر اختر رسول قادری، آستانہ ہے غوثیہ حق بہو سرکار، لاہور کینٹس، پاکستان۔ چیئرمین ادارہ منہاج الاسلام، جو کہ مرکز ہے دین اور اسلام کا اور شرع محمدی کا۔ سلطان باہو آن لائن سے یہ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر روز رات کو 9 بجے یہ فقیر بیٹھتا ہے اور آپ کی خدمت کے لیے دینی اور دنیاوی اور روحانی مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کی رب العالمین مجھے سعادت بخشتے ہیں۔ اور آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اور موضوع کیا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم محرم شریف ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ آیا کہ حسین صرف مسلمانوں کی تھے یا باقی بھی قوموں کے لیے ایک چراغ تھے نور ہدایت کے؟ اس موضوع پر میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّٰهِ 12 شهرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ مِنْهَا 4 حُرُمٌ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں اور میں نے یہ کتاب میں لکھ دیا ہے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ 4 ماہ جو ہے وہ میں نے حرمت والے بنا دیے ہیں۔ ان میں ایک ماہ جو ہے وہ محرم شریف کا بھی ہے۔ اور محرم کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ہمیں اس چیز سے محفوظ رہنا چاہیے، اس لیے محرم کو محرم کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور آج آپ کو علم ہے کہ محرم شریف شروع ہونے والا ہے، اور یہ محرم الحرام جو ہے اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ جیسا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اپنی لاریب کتاب میں کہ میں نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں میں نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، اور ان حرمت والے مہینوں میں محرم شریف کا مہینہ بھی حرمت میں شامل ہے۔ گویا کہ اس مقدس مہینے کا احترام، اس کا ادب، اس کی عبادت، اس کی ریاضات بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو محرم کے ان 10 دنوں میں روزے رکھے گا اسے ایک روزے کا ثواب نہیں بلکہ 30 روزوں کا ثواب اسے عطا کر دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ 10 روزے رکھتے ہیں تو 10 مہینوں کا جو ثواب ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، وہ بھی حضور نبی کریم رحمت عالم سے انہوں نے سنا کہ جس نے محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھا، عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم شریف، اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 10,000 شہیدوں کا جو ثواب ہے
اس روزہ رکھنے والے کو وہ بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ 10,000 ایسے لوگ جو حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے ہوں، جتنا ثواب ان 10,000 لوگوں کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا مل جائے گا۔ وہ ہے کہ محرم شریف کا آپ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور 10ویں تاریخ کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جو 10 محرم شریف کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اور اس ہاتھ کو بطور محبت اس کے سر کے اوپر پھیرتا ہے، جتنے بال اس یتیم کے سر پر ہوں گے ان بالوں کے برابر اس ہاتھ پھیرنے والے کو نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ گویا کہ محرم شریف کی جو عبادت ہے اس کی بڑی افضلیت ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے اور پھر رکھنے والا جو ہے اس کا کوئی روزہ افطار کرائے تو اسے اتنا ثواب ملے گا کہ جس طرح پوری امت نے روزہ رکھا ہے۔ اب عاشورہ کو یہ اہمیت کیوں دی گئی؟ اس 10 محرم شریف کو یہ مقام اتنا کیوں دیا گیا کہ اس دن کا روزہ رکھنا بہت اجر بہت ثواب ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دس محرم شریف کو یہ اہمیت کیوں دی گئی، یہ مقام کیوں دیا گیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے کائنات میں پہاڑوں کو پیدا کیا وہ 10 محرم شریف اور عاشورہ کا دن تھا، اور جس دن دریاؤں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم شریف تھی۔ زمین اور آسمانوں کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، وہ بھی 10 محرم شریف عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، آپ کی مٹی کو جمع کیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن 10 محرم شریف تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا ہی دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی کنارے لگی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم شریف تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جب ڈاچی پیدا کی گئی پہاڑی سے وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب آگ کو گل و گلزار کیا تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم شریف تھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے شکم میں گئے، اب جب باہر تشریف لائے تو وہ بھی 10 محرم اور عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور جب آپ کو شفا ملی تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم تھا، یعنی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہی ملی وہ بھی 10 تاریخ تھی اور عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فتح ملی، کامیابی ملی، 10 محرم اور عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم شریف تھی۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی وہ بھی 10 تاریخ ہوگی۔ اور آج اس دنیا اور معاشرہ کے اندر ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو سیدنا غوث العظم حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی آپ کی نیاز دیتے ہیں، 10 تاریخ ہوتی ہے اور 11ویں رات ہوتی ہے۔ اس تاریخ کو ہمیں اس لیے ہمیں اہمیت دیتے ہیں، اس لیے ہم اس تاریخ سے پیار کرتے ہیں، اللہ نے اپنے انبیاء کو اس تاریخ کو نوازا ہے۔
ज़मीन को बनाया 10 तारीख थी, आसमान को बनाया, मशरक़ मगरब शमाल जुनूब को बनाया 10 तारीख थी, रात और दिन को बनाया 10 तारीख थी, लोहो कलम को बनाया 10 तारीख थी, आदम नबी को बनाया 10 तारीख थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगाई 10 तारीख थी, इब्राहीम पैगम्बर पर आग को गुलजार किया तो 10 तारीख थी। गोया कि इन तमाम चीज़ों को हम अपने जहन में सामने रखने के बाद और फिर हम जो है नियाज दिलाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसुल आज़म पीरों के पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी की, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो हम 11वीं शरीफ की नियाज दिलाते हैं वो 10 तारीख को इसलिए दिवाते हैं कि इस तारीख को बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम हासिल है, बड़ा वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को दिया है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी सरकार गौस पाक के मानने वाले लोग हैं वो 10 तारीख को इसीलिए 11वीं शरीफ का ख़त्म शरीफ दिलाते हैं। असल तो हम अपने बुज़ुर्गों को एक सवाब पेश करते हैं कि हमने जो कुरान पाक पढ़ा, दरूद पाक पढ़ा, इस्तग़फ़ार पढ़ा है, कलमा शरीफ पढ़ा है, फिर लंगर पाक पकाते हैं और पकाने के बाद हम फिर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। उसका सवाब अल्लाह करीम की बारगाह में और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा नबी तक, फिर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अज़वाज, आपके ख़ानदान, अहले बैत, खुलफ़ाए राशिदीन, असहाब रसूल, ताबिईन, तब ताबीन कराम, अइम्मा अरबा, इन तमाम के दरबार में हम इसका सवाब पेश करते हैं। इसलिए हम इस 10 तारीख को अहमियत देते हैं। अगर आपको 11 को भी दिलाना चाहता है गुनाह नहीं, 12 तारीख को भी आप ख़त्म शरीफ दिलाना चाहते हैं कोई गुनाह नहीं। आपने कलाम पाक पढ़ना है और पढ़ने के बाद दुआ खैर करनी है। हमारा मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, उसके रसूल की बारगाह में हमारा मकसद जो है वो सवाब पेश करना है। अब एक और रवायत मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये भी रवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हुजूर से सुना है कि जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखेगा यानी 10 मुहर्रम शरीफ का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएंगे और 60 साल की इबादत के साथ साथ उसे 60 साल के रोज़े भी अनायत फरमाएंगे जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखता है। इसी तरह जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 1000 शहीदों का सवाब अता फरमाते। जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखे, मेरा रब उसे 1000 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। और फिर एक रवायत में और भी आता है कि जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 7 ज़मीनों 7 आसमानों के बराबर जो लोग इबादत कर रहे हैं ज़मीनों पर आसमानों पे, उनकी इबादत का सवाब इस आशूरा के दिन के बराबर उनको अता कर दिया जाता है। फिर एक रवायत में और भी पढ़ा था कि जो शख्स आशूरा के दिन सुरमा लगाए, सुबह उठे, गुस्ल करे, तहज्जुद पढ़े, नमाज पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाब पेश करे, अहले बैत की बारगाह में सवाब पेश करे और ख़ुसूसन हज़रत इमाम हुसैन और उनके तमाम रुफ़क़ा के लिए जो सवाब पेश करता है और फिर उसके बाद आंखों में सुरमा लगाता है। फरमान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि साल भर उसकी आंखें ख़राब नहीं होंगी। जी वालेकुम सलाम जी। पीर साहब, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम शुरू किया है। पूरी दुनिया में जो मुसलमान है उनके लिए बेहतरी होगी। और जो आपका प्रोग्राम, मैं आपका से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है नाउ तनवीर, तो बहुत अच्छा है सिलसिला देखिए शुरू किया है। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। और दूसरा मैं पीर साहब और भी मैं क्या मेरे जहन में सवाल और भी सारे पूरे दुनिया में लोग प्रोग्राम देखें उनके लोगों जहन में ये सवाल होगा, जैसे अभी मुहर्रम अल-आम का महीना शुरू होने वाला है, इसके हवाले से कोई आप ऐसी मतलब थोड़ा सा बताएं कि ऐसी कौन सी इबादत की जाए या क्या मतलब कोई नफल पढ़े जाए जिनके करने से मुहर्रम अल-आम के महीने में अल्लाह ताला के नजदीक ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सके। और आजकल का जो माशरे में लोग बहुत सारी डिग्रियाँ लेके बेरोजगार मतलब है, उनको अच्छा रोजगार मिल जाए और इस तरह की मतलब थोड़ा सा वो कोई खास इबादत जो है वो क्या है, वो कौन सी मतलब नफल या क्या? जी राव साहब, शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। आपकी खिदमत में बताना चाहता हूँ कि जो शख्स इन 10 रातों में यानी मुहर्रम शरीफ का जो पहला आशरा है, अगर इन 10 रातों में रात को 2 रकात नवाफिल अदा करें और हर रकात में
100 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़े। ये ख़ास इबादत मैं आपको इन 10 रातों की बताने लगा हूँ कि जो शख्स इन 10 रातों में रात को सोते वक्त 2 रकात नफल पढ़े और इनका सवाब पंतन पाक की बारगाह में पेश करे। अगर कोई बेटी ऐसी है कि उसका रिश्ता नहीं होता तो इंशाअल्लाह इन रातों में वो 2 रकात नफल पढ़े, पंतन पाक की बारगाह में सवाब पेश करे। इंशाअल्लाह हजूर के सदके उसे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और कोई शख्स ऐसा है कि कर्ज़ है उसके सर पर, तो वो हर रोज़ मुहर्रम शरीफ की 10 रातों में, पहली 10 रातों में सूरह इखलास शरीफ हर रकात में 100 मरतबा, अलहम्दु शरीफ के बाद यानी 2 रकातों में 200 मरतबा पढ़े। और पढ़ने के बाद जैसे ही नवाफिल ख़त्म हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, पंतर पाक की बारगाह में सवाब पेश करे और उसके साथ ही एक तस्बीह दरूद तंजीना की एक तस्बीह आप पढ़ लेते हैं इन 10 रातों में। और इन 10 रातों के अलावा पूरे गोया कि 41 दिन गिन कर, यानी हर रोज़ आपने 2 रकात नफल पढ़ने जिनका सवाब पंतन पाक की बारगाह में पेश करना है। और उसके बाद आपने दरूद तंजीना एक तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह के फजल करम से आपके कर्ज़े का भी इंतज़ाम हो जाएगा। या कोई ऐसा साथी है कि जिसका अपना घर नहीं है, तो वो भी ये 2 रकात नवाफिल अदा करे नीयत करके कि मौला मुझे घर अता कर। तो इंशाअल्लाह इन 41 दिनों में अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से ऐसे असबाब पैदा करेगा कि आपके घर के लिए भी इंतज़ाम हो जाएगा। पहली बात यह है कि जो बेटी रिश्तों से मारूम है, बेटे मारूम है, वो कम से कम 10 दिन और 10 दिन से ज़्यादा 41 दिन हर रोज़ 2 रकात नफल पढ़े जिनका सवाब पंतन पाक की बारगाह में पेश करना है। और फिर ऐसा शख्स जो कर्ज है जिसके सर के ऊपर, या उसका कारखाना नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, तो वो इन 2 रकात नफलों को 41 दिन तक पढ़े और इसके साथ साथ ही जो है दरूद तंजीना की एक तस्बीह पढ़े। इंशाअल्लाह उसके मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और भी कोई साथी सवाल करना चाहता है, मैं इंशाअल्लाह उसके सवाल का जवाब कुरान व हदीस से देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, राव साहब शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मैंने एक रवायत में पढ़ा है कि जो शख्स आशूरा के दिन सुरमा लगाए आँखों में और इस नीयत से लगाए कि मेरे रसूल की सुन्नत है, साल गुजर जाएगा उसकी आँखों की रोशनी कम नहीं होगी। अच्छा, बाज़ लोग और भी हैं, कई लोग सवाल करते हैं जनाब मेरी आँखों में रोशनी कम है। आपको एक बड़ा खूबसूरत नुस्खा बताना चाहता हूँ आँखों के हवाले से कि अल्लाह का एक नाम है या नूरू और रसूलुल्लाह का भी ये नाम है या नूरू। आप इस नाम को कमोपेश 1000 मरतबा पढ़ें हर रोज़ 41 दिन तक। या नूरू आप 41 दिन तक ये पढ़ें। आप एक सुरमा रखें अपने पास, उस सुरमे के ऊपर आपने फूंक मारना होगा। वह सुरमा आपने 41 दिन उसके ऊपर फूंक मारना है, 41 दिन आपने अपनी आँखों में लगाना है और 41 दिन ही या नूरू 1000 मरतबा आपने पढ़ना होगा कि ए नूर पैदा करने वाले मेरी आँखों में नूर पैदा फरमा दे। आका अलैहिस्सलाम की मुझे एक हदीस याद आ गई। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नाबीना शख्स आया। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे आँखों से नज़र नहीं आता और मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर रोज़ जो है मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ूँ और नमाज के साथ साथ मैं आपका दीदार भी करता रहूँ। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बितवज्जिहिका बिवसीलतिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि सादा लफ्ज़ों में आपको यूँ अर्ज़ कर देता हूँ कि आप जब भी दुआ मांगे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर दुआ मांगे कि अल्लाह मेरी आंखों में नूर पैदा फरमा दे। तो आप देखना कि इस दुआ की बरकत से आपकी आंखों में नूर आएगा। और फिर जब उस शख्स ने हुज़ूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह कि नज़र करम फरमाएँ कि मेरी आंखों में नूर आ जाए। अब हुज़ूर से जब उस शख्स ने इल्तिजा की, हुज़ूर ने उसे दुआ बताई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल के सदके अल्लाह ने उसकी आंखों में नूर पैदा कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब भी दुआ मांगे हुज़ूर के वसीले से मांगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़ को उठा लिया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई वसीले से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, गुनाह है। भाई बात यह है कि बग़ैर वसीले के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप छत पे चढ़ना चाहते हैं, बग़ैर सीढ़ियों के आप चढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल और मामलात दुनिया में रहते हुए कि आप उनको तय नहीं कर सकते जब तक आप कोई वसीला तलाश नहीं करेंगे। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप गवर्नर पंजाब को मिलना चाहते हैं, आप मुझे बताएं कि आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं उन्हें, या आप डायरेक्ट मिल सकते हैं उन्हें? नहीं।
آپ ان کے پی اے سے فون کریں گے، پی اے کو، ان سے ٹائم لیں گے اور پی اے صاحب بتائے گا کہ بھائی فلاں وقت اور فلاں تاریخ اور فلاں دن آپ گورنر صاحب کو مل سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ گورنر صاحب کو ملنے کے لیے، وہ دنیا کا ایک دنیا دار گورنر ہے، اس کو ملنے کے لیے ایک دنیا دار کے وسیلے کی آپ کو ضرورت پیش آئی، اور جب آپ نے خدا کے قرب میں جانا ہے، رسول اللہ کی محبت میں جانا ہے، تو پھر آپ کو کسی اہل اللہ کے قدموں میں جانا پڑے گا، اور اہل اللہ کے قدموں کی برکت سے وہ آپ پر ایسی نگاہ کرے گا، آپ کو در خدا بھی مل جائے گا، در مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ میرے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مرشد او سیڑیے جیڑا دو جگ دی خوشی وکھاوے ہو۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مرشد او سیڑیے جیڑا دو جگ دی خوشی وکھاوے ہو اور اول غم ٹکڑے دا میٹے وت مولا دا راہ سمجھاوے ہو۔ گویا کہ دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو کسی کامل مرشد کی ضرورت ہے، کسی اہل اللہ کی ضرورت ہے۔ کسی اہل اللہ کے قدموں میں آپ بیٹھیں گے تو یقیناً اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے وہ آپ کو خدا کا بھی راستہ دکھائے گا اور مصطفیٰ کا بھی راستہ دکھائے گا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی جو حضور سے آنکھیں مانگتا رہا، حضور نے نگاہ کی، اللہ نے اس کی آنکھوں میں نور ڈال دیا، وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، آقا علیہ السلام کا چہرہ ٹک ٹکی باندھ کر شام تک دیکھتا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کی آقا زندگی کی بس یہی تو حسرت تھی کہ مولا مجھے آنکھیں دے دے، میں اپنے رسول کا دیدار تو کر سکوں، میں اپنے رسول کا چہرہ تو دیکھ سکوں۔ اور بہت سارے اصحاب کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے، جب میرے اور آپ کے آقا کا وصال ہو گیا تھا تو بہت سارے اصحاب دیوانے اور پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے ہمارا محبوب دیکھا ہو، کسی نے ہمارے آقا دیکھا ہو، کسی نے ہمارا تاجدار دیکھا ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال حبشی مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے، شام چلے گئے تھے کہ میں جب اس مدینۃ الرسول میں رہوں گا میرے آقا مجھے نظر نہیں آئیں گے تو میرا یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ اور اس صحابی نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں نے تو آنکھیں اس لیے تجھ سے لی تھی کہ میں اپنے رسول کا چہرہ دیکھ سکوں، آج میرا رسول مجھ سے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ اس کی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آنکھیں صحیح جگہ استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی زبان کی اور اپنی آنکھوں کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی جو شخص حفاظت کرے گا، پہلی اس کی آنکھیں، دوسری اس کی زبان ہے، تیسری اس کی شرمگاہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ان 3 چیزوں کی حفاظت کرے گا قیامت والے دن مصطفیٰ کریم اس کی شفاعت کرے گا۔ ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے دل کی بھی حفاظت۔ کوئی دنیا میں جاننے والا نہیں تھا لیکن اپنے رب سے ہر حال میں 70 مرتبہ معافی مانگتے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور تو کوئی گناہ گار نہیں تھے الیاذ باللہ، وہ تو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، مالک ہیں، وارث ہیں، کائنات کے محسن ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنو تمہاری جانوں کے بھی قریب ہے۔ اور جیسے خالق نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندے میں تیری شارک سے بھی قریب ہوں۔ اور محبوب کے بارے میں جب فیصلہ ہوا فرمایا کہ محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری جانوں کے بھی قریب ہوں، اور واقعی ہمارے آقا ہماری جانوں کے قریب ہیں، ہم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آقا کی حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اور کچھ ایسے بھی درود ہیں کہ جن کے درود فرشتے میری بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا حیات ہیں، ہم اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے حضور حیات النبی ہیں، ہمارے آقا ہماری ہر چیز کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب کچھ سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ محرم شریف میں شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ شرائع محمدی جو آقا علیہ السلام کا نظام ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا کہ آپ محرم میں شادی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک خون مصطفیٰ کا سوال ہے، احترام مصطفیٰ، احترام امام حسین، آپ دیکھیں نا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کیا فوتگی کی موجودگی میں آپ شادیاں کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں مرگ ہو اور مرگ
2 दिन 4 दिन 5 दिन गुजर गए, क्या आप शादी करेंगे? आपको अच्छा लगेगा? बल्कि आप ये कहेंगे कि भाई जब तक 40वां नहीं गुजरता मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी मेन वजह क्या है? एक लिए कॉल, लाइव कॉल है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मैं उम्मे हमारा बात कर रही हूँ। जी बेटा। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी इस्लामी महीना जो मुहर्रम हराम है उसके हवाले से। जी जी। अच्छा मुझे ये पूछना था कि क्या हमें मुहर्रम हराम जो इस्लामी महीना हमारा है इसमें हमें रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 9वीं और 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखना चाहिए। ये पूछना चाह रही थी कि हमें किन दिनों में रखने चाहिए, मतलब कितने दिन है जिनमें हम रोज़ा रख सकते हैं? अच्छा, बात यह है कि बेटा मैंने ये पहला सवाल आपका ये है कि मुहर्रम शरीफ में रोज़े 9वीं या 10वीं के रखने चाहिए या 10 रोज़े रखने चाहिए। मैंने ये दोनों सवाल कुछ देर पहले बयान कर दिए हैं कि आप यकम मुहर्रम शरीफ से लेकर 10 मुहर्रम शरीफ तक रोज़े रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दर्जा, ज़्यादा सवाब जो दिया है वो 9वीं और 10वीं का है, और 9वीं का भी कम है। आप 10वीं आशूरा का दिन का जो है वो रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन को बड़ी फजीलत हासिल है और आका अलैहिस्सलाम ख़ुद रखा करते थे, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ख़ुद ये रोज़ा रखते और हमें भी रखने का हुक्म दिया है। अच्छा हज़रत मुझे ये बता दीजिए इसकी नियत क्या करनी चाहिए हमें मुहर्रम हराम का जब हम रोज़ा रखें आशूरा? बात यह है कि नीयत तो सबसे बड़ी, रोज़े की नीयत तो अल्लाह की रज़ा है, लेकिन उसमें यह है कि आपके ज़हन में, आपके दिल में ख़्याल होना चाहिए कि हमारे इमाम अली मुकाम और उनके रफ़ाक़ा जो कि 7 मुहर्रम शरीफ से उनका पानी बंद कर दिया गया था, एहतराम वाले जो लोग हैं, अदब वाले और मोहब्बत वाले जो लोग हैं, वो 7 मुहर्रम शरीफ का भी रोज़ा रखते हैं, 8 का भी रखते हैं, 9वीं का भी रखते हैं, 10वीं का भी रखते हैं। और रखते इसलिए हैं कि हमारे इमाम पाक को प्यासा शहीद किया गया और हमारे इमाम ने पानी की तरफ लब नहीं हिलाए। वो चाहते तो, वो तो इतना बड़ा घराना है, वो चाहते तो जहाँ कदम रखते वहाँ से पानी के चश्मे उबल सकते थे। हमारे इमाम को तो अल्लाह ने इतनी हिम्मत और इतनी ताकत और इतनी शान बख्शी है, सरकार इमाम हुसैन पाक को, वो चाहते तो फरात चल कर उनके कदमों में आ सकता था, लेकिन इमाम ने दुनिया को ये बता दिया था कि लोगों, दीन को बचाने की खातिर अगर तुम्हें भूखा और प्यासा भी रहना पड़े तो बर्दाश्त कर लेना और दीन को बचा लेना। असल बात यह है कि इन रोज़ों की जो नीयत है, इनका सवाब जो है वो ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया जाए, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए आपने रोज़ा रखना है। और कोई बेटा सवाल है तो वो भी बता दें आप। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और लाइव आपकी जो ट्रांसमिशन है बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी इज़्ज़त दे। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था मुहर्रम शरीफ की शादी के हवाले से, एहतराम की वजह से आप इस मुक़द्दस महीने में हम कोई काम नहीं करते, ना बेटियों के रिश्ते करते हैं, ना बेटों के रिश्ते करते हैं, ना शादियाँ करते हैं। 40 दिन तक हमारे दिल में ये ख़्याल मुस्तफ़ा और नवासा मुस्तफ़ा का एहतराम होता है कि यार उन लोगों ने अपनी जानों को क्यों कुर्बान किया था, उन लोगों को क्या ज़रूरत पेश आई थी, क्या उनके पास इज़्ज़त की कमी थी, या ताज व तख्त की कमी थी, या उनके पास कोई शोहरत की कमी थी, या उनके पास बादशाहत की कमी थी? अरे नहीं, वो तो बादशाह घर थे, वो जिस पर नज़र करते उसे बादशाह बना देते, जिस पर नज़र करते वो कतरे से समुंदर कर देते। वो ख़ानदान तो इतना अजीम है, उस ख़ानदान ने ये कुर्बानियाँ देकर आज इस दीन मुस्तफ़ा को बचाया है, ये उस ख़ानदान की बरकत है। अगर वो ख़ानदान अपनी कुर्बानियाँ ना पेश करता, मैं समझता हूँ कि आज हमारी बेटियों की इज़्ज़त महफूज ना रहती, हमारी माँओं की इज़्ज़त महफूज ना रहती, हमारे माशरे में ये जो कुछ भी है ये सारा के सारा उल्ट होता। आज ये दीन मुहम्मदी बचा हुआ है, ये उस ख़ानदान की कुर्बानियों की वजह से बचा हुआ है। इसलिए हम मुहर्रम शरीफ में शादी वगैरह नहीं करते, कोई भी खुशी का काम नहीं करते। अब एक बच्चे ने सवाल किया है, क्या मुहर्रम में मैं नवा कारखाना बनाने के बाद शुरू कर सकता हूँ, या नवा घर बना सकता हूँ, या बनाए हुए में शिफ्ट हो सकता हूँ? आप शिफ्ट तो हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है जश्न का, उससे आप गुरहेज़ करें, क्योंकि हमारे दिल में इस ख़ानदान का एहतराम, हमने इस ख़ानदान की खातिर सब कुछ कुर्बान करना। अब एक और भी सवाल है, बाज़ लोगों को हमने देखा, अक़ीदत वाले लोगों को,
کہ मुहर्रम शरीफ में वह अपना हंसना वो बंद कर देते हैं, वो खामोशी इख्तियार करते हैं। उनके लबों पर आले रसूल का ज़िक्र होता है और वो ये सोचते हैं कि वो ख़ानदान जो 27 रजब को मदीना शरीफ से मक्का शरीफ और मक्का शरीफ से कूफा आया था और कूफा से करबला आया था, वो 6 महीने का जो सफ़र किया था, उनके लबों पे मुस्कराहट थी, उनके लबों पर कोई मुस्कराहट नहीं थी। उनके लबों पर अल्लाह का ज़िक्र था, रसूलुल्लाह का ज़िक्र था, और उनकी सोच और फ़िक्र ये थी कि अल्लाह हमारे नबी का दीन बच जाए, हमारे नबी की शरीयत बच जाए। तो गोया कि इस महीने में हंसना भी मुनासिब नहीं है। इन 10 दिनों में ख़ास करके मैं आपको ये मना नहीं कर रहा अपना हंसें, मैं बतौर एहतराम आपसे बात कर रहा हूँ कि हम जिस तरह ठट्टे मारते हैं तो हंसने की, आप देखें कि तारीख़ उठा कर देखें कि सरकार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस दिन बाप शहीद हुआ उस दिन से लेके अपनी आखिरी दिन तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी कि जिसका बाप उसके आंखों के सामने शहीद हो रहा हो, जिसके भाई शहीद हो रहे हों, जिसके कज़न शहीद हो रहे हों, ऐसे ऐसे अजीम लोग जिसके सामने शहीद हो जाएं, क्या उन चेहरों पर मुस्कुराहट आ सकती है? हज़रत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जितने साल ज़िंदा रहे, जितना अरसा ज़िंदा रहे, आप उतने अरसे तक मुस्कराए नहीं थे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी कि मेरे ख़ानदान को इस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। तो हज़रत इमाम, अब एक सवाल और भी किसी साथी ने किया है कि इमाम हुसैन के ज़िक्र में रोना कैसा है? ओ भाई, इमाम हुसैन पाक के ज़िक्र में रोना तो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है ज़िक्र हुसैन में रोना। आप ज़िक्र हुसैन में रोएं तो सही, अल्लाह की कसम आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जो हुसैन की मोहब्बत में रोता है उसकी दुनिया बदल जाएगी, उसके घर में दीन, उसके घर में शरीयत मुहम्मदी, उसके घर में अल्लाह का फ़ज़ल और उसका करम उसके घर में डेरे डाल देंगे जो ज़िक्र हुसैन की वजह से रोते। और ज़िक्र हुसैन में रोना मेरे आका की सुन्नत है। हज़रत उम्मा सलमा फरमाती है कि जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए तो मैंने ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलाम का मुझे दीदार हुआ, और जब हुज़ूर का मुझे दीदार हुआ तो मैंने देखा कि हुज़ूर की ज़ुल्फ़े मुबारक जो थी वो बिखरी हुई थी, दाढ़ी मुबारक के बाल जो थे वो उड़े हुए थे, अपनी जगह से हिले हुए थे, हटे हुए थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पर गर्द व गुबार था। तो मैंने सरकार से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आज ये हालत क्यों है? हुज़ूर ने फरमाया कि उम्मा सलमा, तुम्हें पता नहीं कि आज मेरे हुसैन को शहीद कर दिया है? आज 10 मुहर्रम शरीफ है, 61 हिजरी है और जुमे का दिन है। तुम्हें इल्म नहीं है कि मैंने जब इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो जिब्रील ने मुझे खाक के करबला पेश की थी, मैंने हज़रत उम्मा सलमा को दे दी थी, और उम्मा सलमा से हुज़ूर ने फरमाया था कि उम्मा सलमा, जब ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो चुका है। तो हज़रत उम्मा सलमा कहती है कि मैंने हुज़ूर को रोते हुए देखा। इससे साबित हुआ कि ज़िक्र हुसैन में, गम हुसैन में रोना जो है मुस्तफ़ा की सुन्नत है, असहाब की सुन्नत है, औलिया कराम का मुस्तहब तरीका है। और मेरा तो अकीदा है कि जो ज़िक्र हुसैन में रोता है, खुदा की कसम उसकी दुनिया संवर जाती। आम बंदा नहीं रो सकता, ये अल्लाह की तौफीक होती है। कई वो भी मरदूद देखे जो हमने मुहर्रम शरीफ में यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते देखा, कई हमने वो भी मरदूद देखे जो यजीद के साथ अपनी रिश्तेदारियां, अपना हसब नसब निकालना चाहते हैं। कई ऐसे मरदूद भी हमने देखे जो कहते हैं कि हम यजीद की दिफा करेंगे तो हज़रत अमीर माविया का दिफा होगा। असल बात ये नहीं है, असल बात यह है कि हर एक ने अपने अपने अमल के साथ जाना है। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ उठा कर देख ले कि जब उनके आल औलाद पर अज़ाब इलाही आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह ये मेरी औलाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये तेरी आल नहीं है, अगर तेरी आल होती तो आज ये लोग गुस्ताख ना होते, बेअदब ना होते, अल्लाह ने सबको गर्क कर दिया था। तो सवाल ये है कि जिस शख्स ने भी इस ख़ानदान के साथ ज़्यादती की होगी उसका हिसाब व किताब ज़रूर होगा, इस दुनिया में नहीं तो आखिरत की दुनिया में तो ज़रूर होगा। तो आज हमें शर्म करनी चाहिए। आप यजीद की तारीख़ उठा कर देख ले कि यजीद का क्या किरदार था, और कल मेरा इरादा है कि कल मैं यजीद के किरदार के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि यजीद कौन था और इसका किरदार क्या था। इस मौजू पर आपसे कल इंशाअल्लाह मेरी मुकम्मल डिटेल से बात होगी कि यजीद का क्या किरदार था और यजीद क्या करता रहा। तो मेरा सवाल एक ये भी किसी बच्चे ने सवाल किया है कि मुहर्रम शरीफ में सबसे ज़्यादा इबादत की क्या की जाए? अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, रसूल पाक और रसूल पाक की आल पर दरूद पढ़ा जाए।
اور اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی کسی نے سوال کیا کہ محرم شریف میں گانے سننے چاہیے یا نہیں سننے چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ تیرا باپ مرا ہو اور تو سامنے گانے لگا کر بیٹھ جائے، لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ ہمارا تو یہ روحانی سلسلہ ہے، پوری دنیا کے روحانی مسیحا ہیں حضرت امام حسین اور آپ کے تمام رفقا. ہمیں تو ان سے ہمدردی ہے، ہمارے دل میں ان کا احترام ہے، اور ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ خاندان مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. ایک یہ بھی کسی نے سوال کیا ہے کہ محرم شریف میں قوالی سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے. آپ قوالی سن سکتے ہیں جس میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، ذکر امام علی مقام ہو، نعت پڑھ سکتے ہیں. آخری بات میں سنانا چاہتا ہوں، اور یہ آخری بات کس کی ہے؟ اس خاندان کی سنانا چاہتا ہوں جس خاندان کا نام خاندان آل رسول ہے. اور یہ شہزادہ کون ہے؟ امام زین العابدین ہے. اس شہزادے کا نام امام زین العابدین ہے. زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت کی زینت، سجاد ساری رات سجدے میں پڑے رہتے اور روتے رہتے، قیام میں گزر جاتی، رکوع میں گزر جاتی، اتحیات میں گزر جاتی راتیں، سجدوں میں گزر جاتی، لیکن آپ کی عبادت مکمل نہ ہوتی. اتنی عبادت کرتے تھے حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ. حشام بن عبد الملک بن مروان یہ وقت کا حاکم تھا. ایک مرتبہ یہ خانہ کعبہ کے اندر آیا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں حجر اسود کو بوسہ لوں. رش اتنا تھا کہ یہ حجر اسود کے قریب نہ پہنچ سکا. اتفاق کیا، اتنا رش تھا خانہ کعبہ کے اندر. یہ حشام بن عبد الملک جو ہے یہ حجر اسود کے قریب نہ پہنچ سکا، جبکہ وقت کا حاکم تھا اور بادشاہ تھا. یہ اسی طرح چھوڑ کر چلا گیا اور ممبر پر جا کر بیٹھ گیا. اور جب ممبر پر جا کر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر میں ایک آواز آتی ہے. ایک نوجوان، کڑیل نوجوان، خوبصورت چہرہ، حسین چہرہ، حسین لباس، حسین چہرہ، کعبہ کے اندر داخل ہوتا ہے. اور جب مطاف والی جگہ آتا ہے، مطاف والی جگہ جب آتا ہے تو دنیا چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتی ہے. مطاف والی جگہ آتا ہے، دنیا حجر اسود کو چھوڑ دیتی ہے، راستہ چھوڑ دیا، علیحدہ ہو گئی، حجر اسود خالی ہو گیا. بہت سارے ایسے نوجوان تھے جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے. اور حشام بن عبد الملک نے جب دیکھا، اس نے ایک نوجوان کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون ہے. وہ نوجوان سے جب پوچھا تو وہ نوجوان اسی گھرانے سے پیار کرنے والا تھا. فرزوق اس کا نام تھا. جب اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، جب میں کعبے کے اندر آیا تھا تو کسی نے مجھے جگہ نہیں دی، حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیا، لیکن آج یہ جب خانہ کعبہ کے اندر آیا ہے، لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اس کے لیے جگہ چھوڑ دی. اس کا چہرہ بڑا حسین ہے، اس کی زلفیں بڑی نورانی ہے، اس کا قد بہت اونچا ہے. بڑے بڑے کڑیل جوان دیکھے، بڑے بڑے حسین دیکھے، لیکن ایسا نوجوان نہیں دیکھا. فرزوق نے کہا کہ مجھ سے سوال کرنے والے، یہ وہ ہے جس کے باپ نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا تھا. یہ وہ ہے جس کا نام امام زین العابدین ہے، اس کے باپ کا نام امام حسین ہے. یہ وہ ہے جس کا بھائی علی اکبر تھا، جس نے اپنی جوانی میدان کربلا میں قربان کر دی. امام قاسم اس کا بھائی شہید ہو گیا. علی اصغر معصوم 6 ماہ کی جس کی عمر تھی، یہ اس کا بڑا بھائی ہے. یہ اس گھرانے کا چشم و چراغ ہے جس نے اپنے سامنے پورے کنبے کو قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اس گھرانے کا نور ہے جس نے اپنی زبان سے اف نہ کہا، اپنی آنکھوں میں آنسو نہ لے کر آئے، سب کچھ قربان کر کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا، اللہ جو تیری رضا ہے میری رضا ہے. اس کا نام امام زین العابدین ہے. حشام بہت پریشان ہوا کہ یہ مقام اسے کیسے ملا ہے. میں دنیا کا حکمران اور بادشاہ ہوں، مجھے یہ عزت نہیں ملی، بادشاہت ہے میرے پاس. فرزوق نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اولاد رسول ہے، جگر گوشہ ہے، بطول ہے. آپ بے شک بادشاہ ہیں، آپ کی بادشاہی دنیا کے سروں پر ہے.
लेकिन अल्लाह के महबूब बंदों की, आले रसूल के चश्मो चराग और ख़ानदान रसूल की जो बादशाही है, ये सरों पर नहीं होती बल्कि दिलों पर ये लोग हुक्मरानी करते हैं। दुनिया के जो बादशाह होते हैं वो सरों पर हुक्मरानी करते हैं, अल्लाह के जो ग़ुलाम होते हैं, अल्लाह के रसूल के जो ग़ुलाम होते हैं, वो दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। हशाम उठा, उसने बहुत सारे इनाम कराम से नवाजा, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुनिया के तमाम तोहफ़ा तोहफ़ को ठुकरा दिया। कहा कि मुझे उस रब्बुल आलमीन ने इतना कुछ दिया है कि मुझे दुनिया में किसी चीज़ की मोहताजी नहीं है और ना मैं दुनिया का मोहताज हो सकता हूँ। दुनिया में अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। मेरा तो नाना वो था, मेरा तो नाना वो है जो हौज़े कौसर का मालिक है, क़यामत के दिन पूरी उम्मत को अपने हाथों से पानी पिला रहा होगा। मुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद यही है, मुहर्रम शरीफ जैसा कि मुक़द्दस और बाबरकत महीना है, या आपकी खिदमत में जो मैंने तहरीर जो हदीसें पेश की हैं, ये तमाम की तमाम गुनियतुत तालिबीन के अंदर मौजूद हैं। और गुनियतुत तालिबीन सरकार गौसुल आज़म की बड़ी खूबसूरत किताब है, सफ़ा नंबर 532 के अंदर ये तमाम तहरीरें मौजूद हैं। आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें, आप देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर में दुआ है कि मालिक हमारी आज की इस हाज़री कबूल फ़रमाए। और अब मैं दम करता हूँ, जिसके सर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, आँखों में दर्द है, कहीं भी उसको दर्द है, वो उस जगह कलमा शरीफ पढ़ते हुए अपने जिस्म पर हाथ फेरे और मैं इंशाअल्लाह उसको दम करता हूँ। और दम के बाद फिर हम इज्तिमाई दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक़ि वल आलम दाफिल बलाइ वल वबाइ वल क़ाति वल मरद वल आलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुम फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदना अरबी वल आदम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तर मुताहरुम मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सि दुहा बद्र दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफ़िल वरा मिसबाह ज़ुलम जमील शियम शफ़ील उमम साहिबल जूद वल करम वल्लाहु आसिमु जिब्रील ख़ादिमुहु वल बुराक़ु मरकबु वल मिराज सफ़रुहु वसिदरतुल मुंतहा मकामुहु वक़ाब कौसैनि मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यिदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमाली सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने जिस्म पे आप फूंक मारें, अपने हाथों पे फूंक मारें और फिर अपने जिस्म पे फेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन। अल्लाह इन तमाम को शिफा दे जिनको मैंने दम किया है। अब हम दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मौला ही कायनात, हमने जो मुहर्रम शरीफ के हवाले से गुफ्तगू की है कि हम बासियत इंसान मुहर्रम शरीफ कैसे गुजारें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस गुफ्तगू में कोई कमी पेशी होगी है, कोई गलती होगी है तो मुझे माफ़ फरमा देना। ए मौला, मेरे रसूलुल्लाह के सदक़े आपकी बारगाह में इसका सवाब पेश करते कबूल फरमा और आपके सदक़े आपकी आल औलाद और ख़ुसूसन पंतन पाक की बारगाह में शुहदाए करबला वाले 72 अफराद जिन्होंने अजीम कुर्बानियाँ पेश की, 82 काफ़िला, उन तमाम की खिदमत में इसका सवाब पेश करते कबूल फरमा। या इलाही रसूल पाक के सदक़े, हमारी इस दुआओं के सदक़े मौला अज़ल, हमारी एक बहन ज़किया यूके के अंदर वो बहुत परेशान है, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक उसकी मुश्किलात के अंदर आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारी एक बेटी हुमैरा भट्टी और रैनो शरीफ यूके के अंदर, अल्लाह वो बीमार है, उन्हें कामिल शिफा अता फरमा, उन्हें सेहत अता फरमा। या अल्लाह, हमारी एक बहन है फ़जीलत, मेरे मालिक उसकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। अल्लाह, बीबी फ़ातिमा के सदक़े अल्लाह मेरी बहन की तकलीफ़ों को रफ़ा कर दे। अल्लाह, मेरी बहन को ज़हनी सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह, इनकी तमाम बीमारियों को दूर फरमा दे। मौलाए कायनात, हमारे राव साहब ने
पाक वतन शरीफ से उन पर, उनके बच्चों पर करम फरमा दे। या अल्लाह रसूल मुअज़्ज़म के सदक़े हमारे नजम साहब कनाडा से उन पर करम फरमा दे। या इलाहुल आलमीन आका अलैहिस्सलाम के सदक़े हमारी एक बच्ची है बल्कीस कनाडा से, उन पर करम फरमा दे। डॉक्टर परवेज़ इकबाल पर करम फरमा दे। बाकी जिन लोगों ने भी दुआओं के लिए कहा है अल्लाह उनकी तमाम की दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह मेरे रसूल पाक के सदक़े हमारे घरों में जो कर्ज़े हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमारियाँ हैं उन बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह जो परेशानी उन परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जिनके पास घर नहीं उन्हें अपने घर अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास अपने दर नहीं उन्हें दर अता फरमा। या अल्लाह जो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, या अल्लाह सरकार के सदक़े लाइकी पे कर जितने भी हमारे लोग फेसबुक के ऊपर हैं, यूट्यूब के ऊपर हैं, लाइक पेज के ऊपर हैं, जहाँ जहाँ भी दुआ के लिए खड़े हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह उन तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व